Hello everyone. This lecture video is about the interference in thin film. That means we will know about the formation of colors in thin film. So I am going to describe and explain the phenomenon of interference in thin films or glass plate. When a thin film of oil is sprayed over the surface of water is viewed by the white light reflected from its brilliant colors are seen. A similar phenomenon is observed from soap films or from thin glass plates. These colors arise due to interference of light reflected from upper and lower faces of the thin film or the plate. सो आई थिंक हम लोग सब इस तरीके के फेनोमेनन को ऑब्जर्व किए हैं अपने प्रैक्टिकल्स लाइफ में एंड इन सब के पीछे जो फेनोमेनन है जो साइंस है दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस फेनोमेना. To know clearly more about it, let us try to understand this diagram. इस डायग्राम को हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. Let a ray of monochromatic light incident AB from an extended source be incident at B on a parallel sided film of thickness T and refractive index mu. At point B, the ray divides into reflected ray BR1 and refracted ray BC. At C, at this point, at C, it is partially reflected along CD and partially reflected along CT1. CT1. Similarly, reflection and refraction occurs at point D. यहाँ पर भी. Thus, we get a set of parallel reflected ray BR1 and DR2 and a set of transmitted ray ET2 and CT1. Now, let us find the effective path difference between the ray BR1 and DR2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या सपोज किया, वी कंसिडर थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T और कोई रे है ए बी इंसिडेंट रे है जो कि इंसिडेंट कर रहा है. एट पॉइंट P पे सम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग BR1 एंड सम ऑफ लाइट इज reflected along BC. At point C, some of light is reflected along CD and transmitted along CT1. At point D, again some of light is reflected along DR1. So in this way we have two reflected ray BR1 and DR2 and similarly we have two transmitted ray CT1 and ET2. ये दोनों जो रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्स. सिमिलरली यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड रे है दैट आल्सो बिहेव एज अ कोहेरेंट सोर्स. और जब हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिल जाते हैं तब ऑफ कोर्स जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट हमको इंटरफेरेंस फेनोमेनन मिलेगा. तो ये जब हम लोगों को कोहेरेंट सोर्स मिल गया तब हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता हो जाएगी कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि उस पाथ डिफरेंस पर ही हमें कब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रहा है और कब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रहा है हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम लोगों को दो सपोज हम लोग पहले कंसीडर कर देते हैं इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड का केस, मतलब BR1 और DR2 के बीच में क्या डिफरेंस है ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. ये जो DR2 है इसके लिए लाइट B से BC आ रहा है फिर CD आ रहा है तब DR2 जा रहा है. तो ये जो BC और CD जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इस केस में जो लाइट यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है इस पोर्शन में उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बिकॉज यहाँ पर एयर है. सो हम लोग जो पाथ डिफरेंस लिखेंगे वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर
path difference is equal to path BCD in film minus path BM in air. So that means we can write mu BC plus CD and minus BM. So 2 mu BC minus BM, because BC is equal to CD from diagram. Now let BN and CN dash be the normals at B and C respectively, and let I and R be the angles of incidence and refraction at B. Then with the help of geometry we know that we can write R is equal to T by cos R. So just we have to use here geometry, बस हम लोग यहाँ geometry ही use कर रहे हैं. So BM is equal to BD cos 90 minus I is equal to BD sin I, because cos 90 minus I is equal to sin I. दैट मीन्स हम लोग BM को लिख सकते हैं 2BN डैश साइन आई, और फिर हम लोग लिख सकते हैं 2T tan R साइन आई, बिकॉज BN डैश इज इक्वल टू CN डैश एंड tan R इज इक्वल टू T tan R. सो सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2T इज इक्वल टू साइन R साइन आई बाय कॉस R साइन R इंटू साइन R. And finally we can write 2 mu t cos R by R into sin square R, because sin I by sin R is equal to mu. So path difference में जो हम लोगों ने निकाला था BC plus BD minus BM, अब यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू जो अभी कैलकुलेट किए हैं वो BC का वैल्यू BM का वैल्यू ये सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, एंड देन इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस 2 mu t cos R. 2 mu t cos R is the path difference between the two reflected ray. अब ये पाथ डिफरेंस एज वी नो डैट कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रहा है. तो जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में फेज पाई से चेंज हो जाता है. जब पाई फेज चेंज होगा तो वी नो डैट फ्रॉम द रिलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 चेंज हो जाएगा. जब फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2 हो जाएगा. इसलिए हम लोगों ने 2 mu t cos R प्लस लेमडा बाय 2 कर दिया. वी कैन प्लस और माइनस एनीथिंग, हम लोग किसी बुक में हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस लेमडा बाय 2 भी लिखा रहता है. सो हम लोग प्लस हो या माइनस हो, इन बोथ द केसेस मीन्स व्हाट कि उतने अमाउंट से पाथ उसका चेंज हो रहा है. तो दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो 2 mu t cos R आया है ये सेम टू सेम पाथ डिफरेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फॉर द ट्रांसमिटेड केस. ट्रांसमिटेड केस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड में हम लोग ये यहाँ पर लेमडा बाय 2 को ऐड कर देंगे. देन हम लोगों को अब कंडीशंस निकालना है. सो वी नो डैट अगेन फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर जहाँ पर हम लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस किया कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 होगा मैक्सिमा के लिए. तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टेड के केस में जब ये लेमडा बाय 2 यहाँ से हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n+1 लेमडा बाय 2. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें मिल गया 2n+1 लेमडा बाय 2. मीन्स व्हाट कि जब ये n लेमडा था हमारा प्रीवियस केस में मैक्सिमा के लिए, लेकिन रिफ्लेक्टेड के केस में ये हो जाएगा मिनिमा का कंडीशन. एंड सिमिलरली हम लोग ट्रांसमिटेड के केस में निकालेंगे. जैसे ही हम लोग निकाले हैं रिफ्लेक्टेड के केस में तो यहाँ पर आ जाएगा 2 mu t cos R हमारा आ जाएगा, जो कि रिफ्लेक्टेड के केस में भी आया था. लेकिन सिंस ट्रांसमिटेड के केस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है,
अगर ट्रांसमिटेड रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए। इसलिए ट्रांसमिटेड के केस में मैक्सिमा का कंडीशन एन लेमडा ही होगा और मिनिमम का कंडीशन 2n-1 लेमडा बाय 2 ही होगा। सो यू कैन सी हियर। सो फाइनली वी कैन राइट, ये हम लोगों ने जो लिखा था और स्टडी किया था अपने स्टोक्स ट्रीटमेंट में कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन फेज डिफरेंस रिफ्लेक्टेड के केस में जो कंडीशन होता है वो ट्रांसमिटेड के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ट्रांसमिटेड का केस और जो हम लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था इन दोनों ही केसों में पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा है तो मैक्सिमा इंटेंसिटी है, और अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाय 2 है तो हमारा मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिलेगा। बस ये केस जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड के केस में। यहाँ पर n लेमडा अगर पाथ डिफरेंस है तो हमको मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, और जब हमें 2n+1 लेमडा बाय 2 पाथ डिफरेंस है तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। So thank you so much for watching this video. Have a nice day to all of you.